Good afternoon, everyone. Thank you so much for accepting our invitation and joining us for today's webinar on delayed walking in children. On behalf of Anshu Center, I, Dr. Vaibhavi, occupational therapist, would like to warmly welcome you all. I'm sure today's session will be insightful and informative for everyone joining us. At Anshu Center, we have started a series of webinars and discussions every Saturday, led by therapists from various domains. These sessions are designed to help parents and caregivers better understand and support their child's developmental needs. A little about Anshu Center. We are an adult and child development center and an urban extension of Kasturba Health Sciences Medical Research Center located in Vileparle West, Mumbai. We provide services for children with neurodevelopmental delays, sensory processing difficulties, learning disabilities, autism, and emotional or behavioral concerns. Our multidisciplinary team includes occupational therapists, physiotherapists, speech therapists, psychologists, nutritionists, special educators, and medical professionals. Today, it is my pleasure to introduce our speaker, Dr. Flora Mudaliar, a qualified physiotherapist who has been associated with Anshu Center for the past 1.5 years. She is known for her clinical expertise and dedication towards supporting children and families. Today's session will include a presentation followed by a Q&A segment. We request everyone to kindly stay on mute during the session and drop their questions in the chat box. We will take them up towards the end. Without further delay, let us warmly welcome Dr. Flora and hand over the session to her. Thank you and wishing everyone a meaningful and enriching session ahead. Thank you, Dr. Vaibhavi, for the beautiful introduction. So, let us start with the seminar. So, parents, are your 15-month-olds not walking? Don't worry, we got you. Because today's topic is on delayed walking in children. So, before we understand what is delayed walking, let us understand what is normal developmental milestone in every child. Every A normal child is considered to hold his head in 3 months, sit with support in 6 months, sit independently in 8 months, crawl in 9 months, pull to stand in 10 months, cruise between furniture in 12 to 15 months, and independent walking in 15 to 18 months. Every child develops at their own pace. Some children walk early, while others take more time to walk. So let us come to the important question of this seminar, which is what is delayed walking? When do we term when do we term the child as a delayed walker? So walking is achieved at the age of 9 to 18 months. Delayed walking is the inability of the child to walk independently even after 18 months of age. If you see that your child is having difficulty or not standing by 12 to 15 months, is not cruising along furniture, difficulty bearing weight on legs, frequent falling while walking, toe walking, has poor balance while walking, floppiness that is reduced muscle strength or stiffness that is increased muscle strength, or spasticity or tightness in the muscle, delayed sitting or crawling. If the child already has a history of delayed sitting and crawling, he or she may also have delayed walking, preference for one side of the leg more than the other side. So, if you notice your child having troubles with this, you have to go to a medical um, practitioner and check your child with it. So, why is walking important according to you? So, most of the parents that come to us, they tell ki we want a child to be independent, to do things by themselves. But I want to let you know that when a child develops crawling, so when he is crawling, he bears weight on his hands, on his feet, on his knees. So when he is engaged in crawling, he does not have the chance to explore much of his environment. So walking gives him or her the chance to explore the environment. He does not only become functionally independent, but balance and coordination is also developed.
he or she, the child also gets chance to play and participate in social activities with peers or children of his age if he or she can work independently. Common causes. So here on, I will continue the session in Hindi so that everybody is on the same page. सो हम देखते हैं कि कॉमन कॉजेस क्या है वॉकिंग डिलेड वॉकिंग की कॉमन कॉजेस देखते हैं. तो फर्स्ट है न्यूरोलॉजिकल कॉज. इसमें मैं फर्स्ट डिस्कस करूंगी आप सीपी के बारे में, सेरेब्रल पाल्सी. एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड सेरेब्रल पाल्सी. तो दिस इज अ कंडीशन. ये जो कंडीशन में क्या होता है कि जब आपका बच्चा बॉर्न होता है या बॉर्न होने के कुछ महीने बाद किसी सिचुएशन या किसी कंडीशन के वजह से अगर उसके ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है तो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उसमें डैमेज होना चालू हो जाता है. उस डैमेज की वजह से डेवलपमेंट में डिले होना चालू हो जाता है. मसल्स में स्पास्टिसिटी या तो टाइटनेस बढ़नी चालू हो जाती है. आप देखोगे कि जब ये बच्चे आपको दिखते हैं तो वो वॉकिंग भी अगर कर रहे होते हैं तो उनकी वॉकिंग पैटर्न गलत होती है, क्रॉस वॉकिंग करता है. तो ये सब टाइटनेस ऑफ मसल्स के वजह से होता है. उनके मसल में इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है कि वो आगे अपने मसल्स पे या जॉइंट्स पे वेट बेयर करके चल सके. सेकेंड चीज जो मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पे वो है हाइपोटोनिया. हाइपोटोनिया का क्या मतलब होता है? आपने आपके डॉक्टर को सुना होगा कि आपके बच्चे का टोन कम है. मसल का टोन कम है मतलब क्या होता है? मसल में जो नॉर्मल ताकत होनी चाहिए कुछ भी चीज उठाने के लिए या पुश करने के लिए वो उन बच्चों में कम होती है. तो हाइपोटोनिया के बहुत सारे कॉजेस होते हैं. बट जब बच्चे में ये हाइपोटोनिया दिखाई देता है उसमें अपनी जॉइंट्स पे वजन बेयर करने की ताकत नहीं होती है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इन बच्चों में वॉकिंग क्रॉलिंग या हेड होल्डिंग भी डिले हो जाता है. थर्ड कॉज मैं डिस्कस करूंगी वो है मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी. मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी उन बच्चों में होता है जो 2 से 5 साल की उम्र में है. 2 से 5 साल इन बच्चों में ऑलरेडी जो वॉकिंग क्रॉलिंग जो उसके नॉर्मल माइलस्टोन्स है वो भी लेट अचीव होते हैं. बट वंस दे हैव अचीव दिस, ये अचीव करने के बाद भी वो आप देखोगे कि इन बच्चों को ये गिरना चालू हो जाता है. स्कूल से कंप्लेन्स आती है कि बच्चा थोड़ा डिस्टेंस भी नहीं चल पा रहा है, वो थक रहा है. आप देखोगे, आप नोटिस करोगे कि वो स्टेयर क्लाइंबिंग पहले करता था, सीढ़ियां चढ़ पाता था, बट अब वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहा, थोड़ा डिस्टेंस भी नहीं चल पा रहा. तो इन बच्चों में एक जेनेटिक प्रॉब्लम होता है. जेनेटिक म्यूटेशन या चेंजेस में जीन्स में जो चेंज होती है उसके वजह से प्रोटीन बनना कम हो जाता है या तो जो प्रोटीन हमारे मसल्स में होता है ऑलरेडी वो टूटना चालू हो जाता है जिसके वजह से ताकत कम हो जाती है और चलने में फिर डिफिकल्टी होने चालू हो जाती है. ऐसे बहुत सारे जेनेटिक कंडीशंस के वजह से अ, बच्चों में डेवलपमेंट डिले दिखाई देता है. पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट जो जो आपका ब्रेन का सोचने का क्षमता, जो बच्चे का ब्रेन का सोचने का क्षमता होता है, वजन लेने का जो क्षमता होता है वो कम हो जाता है. सेकेंड कॉज है मस्कुलोस्केलेटल कॉज. तो मस्कुलोस्केलेटल कॉज में हम देखेंगे कि उनके हड्डियों में और मसल्स में प्रॉब्लम होता है. न्यूरोलॉजिकल कॉज में हमने देखा कि उनके मसल्स एंड बोन्स में तो प्रॉब्लम है बट जो प्रॉब्लम है वो ब्रेन से मसल्स और बोन को अफेक्ट कर रहा है. मस्क्यूलोस्केलेटल प्रॉब्लम में सिर्फ बोन्स और मसल्स का अफेक्ट होता है या फिर तकलीफ होती है. तो फर्स्ट कॉमन कॉज हम देखेंगे हिप डिस्प्लेजिया. हिप डिस्प्लेजिया क्या होता है? तो जब एक बच्चा बॉर्न होता है उसके हिप का जो पोजीशन होना चाहिए, जो बोन प्रॉपरली पोजीशन होने की वजह से जो वेट बेरिंग नॉर्मली कर पाता है बच्चा वो वैसे नहीं कर पाता. उसको वजन देते ही, पैरों पे वजन देते ही उसको बहुत पेन फील होता है जिसकी वजह से वो पैर ही नीचे नहीं रखना चाहता. तो ऐसे जब हम देखते हैं कि बच्चा चलते वक्त बहुत रो रहा है या उसके स्किन फोल्ड्स बहुत ज्यादा है या वो ताकत उसमें वो बैलेंस या ताकत ही नहीं है कि वो अपने पैरों पे पूरा वजन रख पाए, तो इन बच्चों को हम कहते हैं कि आप डॉक्टर के पास दिखाइए, पहले उनका एक्सरे निकलवाइए. अब वो एक्सरे पे हम देख पाते हैं कि उसका हिप जॉइंट जो है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुआ है. तो उसके वजह से मस्क्यूलोस्केलेट उसके वजह से उसको डिले में सॉरी वॉकिंग में डिले होता है. नेक्स्ट कॉमन नेक्स्ट कॉमन कॉज है मसल कॉन्ट्रैक्चर. तो मसल कॉन्ट्रैक्चर्स क्या होते हैं?
मसल कॉन्ट्रैक्चर्स मतलब आपके बच्चे के मसल में इतना टाइटनेस होता है कि उसका जो बॉडी का नॉर्मल फॉर्मेशन होता है, जो नॉर्मल फॉर्म होता है, वो ही खराब हो जाता है। वो खराब हो जाने की वजह से जो वजन आना चाहिए, जो पड़ना चाहिए पैर पे प्रॉपरली, वजन जो पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ पाता है, जिसकी वजह से वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं, उनके चलने में तकलीफ होना चालू हो जाता है। तो इन बच्चों को हम ऑर्थोसिस देते हैं। ऑर्थोसिस मतलब स्पेशल शूज देते हैं, या फिर इंसोल्स देते हैं, या फिर हम बच्चे को देख के एक प्रॉपर ऑर्थोटिस्ट जो उनके लिए एक ऐसी चीज बना पाए जो उनके उनके जॉइंट्स को सपोर्ट कर पाए, तो ऐसे ऑर्थोटिस्ट को हम रेफर करते हैं ताकि उनको वो सपोर्ट मिले चलने के लिए। थर्ड है फ्लैट फुट। जब बच्चा बड़ा होता है तो 2 से 5 साल की उम्र तक या 5 to 8 years तक भी उसका फीट डेवलप होते रहता है। उसके फीट में जो आर्चेस होते हैं, जो वो भी डेवलप होना होते रहते हैं 5 to 8 years तक भी। बट जब ये आर्च पूरा फ्लैट होता है, जब जो हमारा पैर है, जो हमारा फीट है, वो पूरी तरह से फ्लैट होता है, तो हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं। ये सेम थिंग बच्चों में भी होता है। जब वो प्रॉपरली बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो वो गिर गिर जाते हैं। तो फ्लैट फीट के वजह से भी बच्चे ज्यादा गिरते हैं और उनको वॉकिंग में डिले होना चालू हो जाता है। थर्ड प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल एंड बिहेवियरल फैक्टर्स। तो इसमें तो हम नॉर्मली बच्चे पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेकर, कहे वो कहते हैं कि बच्चा चलता नहीं है, रेंगता भी नहीं है। ऐसे क्यों होता है कि जब पेरेंट्स बच्चों को टमी टाइम देना बहुत जरूरी होता है। ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को जमीन पर छोड़ना ही नहीं चाहते। जब बच्चे जमीन पर रहते हैं या टमी पर रहते हैं, अपने पेट के बल जब सोते हैं, उनको अपने हाथों पे वजन रखकर ऊपर आने की, या टॉयज एक्सप्लोर करने की, या उनके आसपास के जो लोग हैं उनको देखने की या एक्सप्लोर करने की, उनके बारे में जानने का मौका मिलता है। बट जब पेरेंट्स उनको नीचे नहीं छोड़ते या बहुत वॉकर्स में रखते हैं, बेबी कैरियर्स में रखते हैं, या कैरियर्स में जो अपने पास उठाकर गोद में रखते हैं, तो इन बच्चों का जो टमी टाइम होता है, या जो एक्सप्लोर करने का जो चांस होता है, या मूवमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है, वो कम हो जाती है। तो इसके वजह से इन बच्चों में डेवलपमेंट या वॉकिंग में डिले होना चालू हो जाता है। सेकेंड थिंग इज एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। हम देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को शांत रखने के लिए या चुप रखने के लिए या एक जगह बैठाने के लिए बहुत स्क्रीन टाइम देते हैं, राइम्स सुनाते हैं, ऐसे कलरफुल पिक्चर्स दिखाते हैं, जिसके वजह से वो शांत बैठता है। आपका बच्चा शांत तो बैठ रहा है, बट उसका जो अपॉर्चुनिटी है एक चीज पे ध्यान देने की, वो डेवलप नहीं हो पाती है इन चीजों की वजह से। जिसकी वजह से जब हम वॉकिंग के लिए बच्चे को ट्रेन करते हैं, जब हम बुलाते हैं, या मम्मा मम्मा को जब हम सामने खड़ा रखते हैं और बच्चे को बोलते हैं कि मॉम के पास जाना है, तो वो जा नहीं पाते, वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते, वो इतना डिस्ट्रैक्टेड होते हैं ये बच्चे कि वो चलने का जो अपॉर्चुनिटी होता है, जो अटेंशन नहीं होने के वजह से लूज हो जाता है उनका। जो एक नॉर्मल बच्चा किसी टॉय को देख के आकर्षित होता है, बट उसने स्क्रीन इतना देख लिया है, उसमें कलर्स इतने देख लिए कि उसको बाकी टॉयज या अपनी मॉम का आवाज या बाकी कोई भी चीज इतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। तो इसके वजह से हम कहते हैं कि बच्चों को स्क्रीन टाइम कम देना चाहिए। थर्ड थिंग इज जो उनके बिहेवियर में चेंजेस होता है। तो हम ऑफन मतलब हम अक्सर मम्मी को या फिर पेरेंट्स को या कोई भी उनके फैमिली मेंबर्स को कहते हैं कि जब बच्चा गिरता है तो उनको एक लाउड रिएक्शन नहीं दे, जोर से चिल्लाए नहीं, जिसकी वजह से उनको डर पैदा हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि गिरना एक नेगेटिव साइन है, गिरेंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा या फिर लग जाएगा, या फिर उनके ब्रेन में वो एक नेगेटिव फीडबैक जैसा एक रजिस्टर हो जाता है। तो जब बच्चा गिरता है तो जोर से चिल्लाने के बजाय उसको शांति से उसके पास जाना चाहिए। अगर बच्चा रो भी रहा होगा तो उसके पास जाके शांति से उसकी पीठ पे हाथ फैला के बोलना चाहिए कि ओके, इट्स ओके इफ यू फॉल। अगर आप गिर गए तो इट्स ओके, हम वापस चलने की कोशिश करेंगे, वैसे उसको मोटिवेट करना चाहिए, जिससे उसका फियर जो है बिहेवियर में
जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो डर लगता है बच्चे को, वो कम हो जाए उसका। ओवर प्रोटेक्टिंग बच्चे, कभी कभी पेरेंट्स बच्चों को गिरने ही नहीं देना चाहते। वो ऐसा, उनको ऐसा लगता है कि वो गिरेंगे तो कुछ लग जाएगा, बट वो अगर गिरेंगे नहीं तो वो चलना भी नहीं सीखेंगे। तो गिरना ठीक है, बट वो जो एक प्रोटेक्टिव बबल में रखते हो, वो पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। फोर्थ मेन कॉज है प्री मेच्योरिटी एंड सेंसरी फैक्टर्स। तो जब बच्चा प्री एक नॉर्मल बच्चा 40 वीक्स में उसका जन्म होता है। जब बच्चों का जन्म 40 वीक्स से पहले होता है, तो ऐसे बच्चों को हम प्री मेच्योर बेबीज कहते हैं। ये जो प्री मेच्योर बेबीज होते हैं, उनका जो मॉम के पेट में रहने का जो डेवलपमेंट होने का जो चांस होता है, वो जल्दी आने के वजह से अ, कम हो जाता है। तो जो डेवलपमेंट एक मॉम की वूम्ब में होना चाहिए, माँ की कोख में जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। तो ये बच्चे जब बाहर जल्दी आते हैं, तो उनका डेवलपमेंट अभी भी हो रहा होता है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं, वो जो कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ जो सेम एज के होते हैं। बट वो ये नहीं समझना चाहते कि जो दूसरा बच्चा है, वो नॉर्मल टाइम पे पैदा हुआ है। बट जब आपका बच्चा है, अगर वो 40 वीक्स की जगह पे 32 वीक्स में आया है, तो वो 2 मंथ्स पहले आया है। तो उसको 2 मंथ्स का स्पेस जो है वो देना जरूरी है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो दूसरा बच्चा है, उसके हिसाब से ही आपका बच्चा भी चले। तो इन बच्चों में स्पेस देने की, उनका अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बेबी प्री मैच्योर है और फिर भी वो इतना अच्छे से चल नहीं पा रहा है, या उसको वजन देने में या फिर क्रॉलिंग करने में, हेड होल्डिंग में भी डिफिकल्टीज आ रही है, तो इट इज बेटर कि आप एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक में आपके बच्चे को रेफर करें, या कोई भी पीडियाट्रिशियन को रेफर करें, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा प्री मैच्योर है बट फिर भी उसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वेट बेयरिंग में, हेड होल्डिंग में, क्रॉलिंग में। तो जो फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स होती है या फिर पीडियाट्रिशियंस होते हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि इन बच्चों को कैसे आगे लेकर जाए। सेंसरी फैक्टर्स, तो जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं उनमें सेंसरी फैक्टर्स बहुत अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उनका हॉस्पिटल का स्टे ज्यादा होता है। बच्चा जब बाहर नॉर्मली 40 वीक्स में बॉर्न होता है, तो उसको टमी टाइम मिलता है, उनको स्वॉडलिंग मिलता है। स्वॉडलिंग मतलब जो कपड़े में हम लपेट लपेट कर रखते हैं बच्चों को, ताकि एक कॉम्प्रेशन मिले, एक प्रेशर मिले उसको। तो ये सारी चीजें हॉस्पिटल में नहीं हो पाती। बहुत सारे इंजेक्शन सलाइन के वजह से उनका वो जो डेवलपमेंट का चांस होता है, टेक्सचर या फिर प्रेशर फील करने का जो चांस होता है, वो नहीं मिल पाता उनको लॉन्ग हॉस्पिटल स्टेज में। तो ऐसे बच्चों को सेंसरी इश्यूज हो जाते हैं, जैसे टेक्सचर इश्यूज हो जाते हैं। अगर हम उनको जमीन पर चला रहे हैं, जमीन से हमने किसी और मैट पे चलाना चालू किया, तो वो अपना पैर खींच लेंगे ऊपर, या हाथ खींच लेंगे, क्योंकि उनको वो टेक्सचर अच्छा नहीं लग रहा है, या उनको वो कंप्रेशन नहीं मिला है ताकि वो पैर बराबर डाल सके। तो जब बच्चा छोटा होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको बांध कर रखें। अभी की सोच ऐसी होती है कि नहीं, उसको खुला रहना पसंद है, उसे गर्मी हो रही है तो हम बांधेंगे नहीं। बट ऐसा नहीं होता है। आपको बच्चे को वो प्रेशर देना ज्यादा जरूरी होता है। अ, आजकल के पेरेंट्स बच्चों को स्विंग में भी नहीं डालते, क्योंकि वो सोचते हैं कि इट इज ऑल जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई है, जो सेल्फ स्लीपिंग स्विंग्स होते हैं, या फिर उसमें डालेंगे तो उनका जो मूवमेंट है, अगर हम बच्चे को स्विंग में डालते हैं तो उससे जो मूवमेंट मिलता है वो, और जो हम हाथ में उठाते हैं या बेड पे सुलाते हैं, वो मूवमेंट में काफी फर्क होता है। तो इन बच्चों में, जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं, उनमें ये सेंसरी फैक्टर्स कम होने की वजह से उनकी वॉकिंग में डिले हो जाता है। तो इन सारी चीजों में पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी आपको कैसे हेल्प करती है? तो हम, जब बच्चा एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक में आता है, तो हम उसका स्ट्रेंथ देखते हैं, बैलेंस देखते हैं, पोस्चर देखते हैं, कोऑर्डिनेशन देखते हैं, अगर वो दोनों पैर से बराबर चल पा रहा है, दोनों पैर पे वजन बराबर दे पा रहा है या नहीं। ये सारे पैटर्न्स, ये सारे इश्यूज हम उसके पहले असेस करते हैं।
वॉकिंग की एबिलिटी कितनी है उसकी, वो असेस करते हैं। और हम उसे एक प्ले बेस्ड थेरेपी के थ्रू ट्रेन करते हैं वॉकिंग के लिए। तो ये कुछ वेज है जिसके थ्रू, ये कुछ वीडियोस मैंने डाले हैं जिसमें मैंने बच्चों को ट्रेन किया है उनके स्ट्रेंथनिंग के लिए, उनके वॉकिंग के लिए, जो आप भी घर में ट्राई कर सकते हो। तो इसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने, हम बच्चों को यूजुअली जो हम बड़ों को कमांड्स दे सकते हैं जैसे कि सिट, स्टैंड, तो बच्चे वो कॉम्प्लेक्स कमांड नहीं समझ पाते। उनको, आपको अगर ट्रेन करना है तो आपको एक प्ले बेस्ड थेरेपी के थ्रू, उनकी फेवरेट टॉयज देख के, उनके फेवरेट सॉन्ग सुना के, ऐसे ही आपको ट्रेन करना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैंने इस वीडियो में अ, बच्चे को बॉल पर लिया है। एक थेरेपी बॉल है। अगर आपके घर में भी, आपके पास अगर थेरेपी बॉल है, तो जैसे मैंने इस बच्चे को पेट के बल लिया है, मैं उसके थ्रू बॉल को आगे के साइड प्रेशर देकर उसके हाथों पे प्रेशर दे रही हूँ, ताकि उसके हाथों पे, जॉइंट्स पे वजन आए। और जब हाथों पे वजन आ रहा है तो वो ऊपर आने की कोशिश करता है, बॉल पे वजन देने की या ऊपर आने की कोशिश करता है, जो एक्सटेंशन बोलते हैं, जो ज्यादा जरूरी होता है वॉकिंग में। तो वो डेवलप होता है बॉल एक्सरसाइजेस से। आप ये फर्स्ट थिंग है। सेकंड, आप एक्सरसाइज जो दे सकते हैं वो है बच्चे को बॉल पे बिठाकर एक्सरसाइज देना। बच्चे को सिर्फ बॉल पर बिठाना है और उसके कमर से थोड़ा कंप्रेशन, मतलब थोड़ा प्रेशर देना है नीचे, ताकि उनके जॉइंट्स पे प्रेशर आए। तो ये सारी चीजें जॉइंट्स पे प्रेशर आने के लिए, उनके हाथों पे, उनके बैक में मसल्स जो है उनका ताकत बढ़ाने के लिए मैंने ये एक्सरसाइज दिया है। सेकेंड एक्सरसाइज है सिट टू स्टैंड। तो जब हम बैठते हैं, उठते हैं, तो हमारे हिप के मसल्स, हमारे पैर के मसल्स, हमारे जो फीट है उस पे प्रेशर आता है, उनमें ताकत बढ़ती है। हम जितना प्रेशर डालते हैं जॉइंट्स पे, उतना बच्चों का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। तो जैसे हम इस वीडियो में देखेंगे, मैंने उस बच्चे को रिंग्स दिया है, और मैंने एक, मतलब थेरेपिस्ट ने एक हाथ से पकड़ा है ताकि बच्चे को थोड़ा सा बैलेंस मिले खड़े होने के लिए। अगर आपका बच्चा बैलेंस नहीं कर पा रहा है तो आपको पूरी तरह से उसका पैर एक हाथ से पकड़ना पड़ेगा, और दूसरे हाथ से उसको टॉयज लेने के लिए मोटिवेट करना है। आपको कॉन्स्टेंटली बोलना है कि ये ले लो। बच्चा खुद से नहीं लेगा, आपको उसको मोटिवेट करना पड़ेगा अ, हर एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये भी एक प्ले बेस्ड थेरेपी है जो आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हो अपने बच्चों के साथ। इसमें मैंने बच्चे का एक पैर ऊपर पकड़ा है और दूसरा पैर मैट पे है। पूरा वेट बेयरिंग हो रहा है, पूरा वजन उसके पैरों पे आ रहा है। ये वेट उसके पैरों पे आना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली जब वो वॉक कर रहा है तो उसके नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न पे जो प्रेशर आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। तो हम पैसिवली, हम एक्सटर्नली उसका पैर पकड़ के उसके बैलेंस के लिए, उसके पैर पे वजन आके उसका स्ट्रेंथ बढ़े, इसके लिए हम उसको ट्रेन कर रहे हैं। सेकेंड है बैलेंस ट्रेनिंग। तो बैलेंस ट्रेनिंग के लिए, जैसे ये बच्चा खुद से पुल नहीं कर पा रहा है, जब बच्चों को चलने के लिए उनको फर्नीचर पकड़ के पुल करना ज्यादा जरूरी होता है। कुछ बच्चों में डेवलप नहीं होता है क्योंकि वो अट्रैक्टेड नहीं होते हैं टॉयज टॉयज से। और कुछ बच्चों में ये क्यों इसलिए नहीं आता है क्योंकि उनकी ताकत ही कम होती है, वो खुद को पुल नहीं कर पाते। अब जैसे ये बच्चा हम देख रहे हैं, इसमें भी ताकत की कमी है। तो मैंने उसका हाथ पकड़ कर रखा है एक साइड से, और मैंने उसके पैरों पे प्रेशर दिया है ताकि उसको उठने का एक सेंसेशन मिले। सामने मैंने उसके पसंदीदा टॉयज रखे हैं जिसको लेने के लिए वो ट्राई कर रही है। तो अगर आपका बच्चा भी पुल टू स्टैंड नहीं कर पा रहा किसी फर्नीचर को या किसी भी चीज को, खड़ा नहीं रह पा रहा, तो दिस इज द बेस्ट वे। आप पैसिवली उसको सिखा सकते हैं कि हम वो कैसे कर सकते हैं। जैसे एक नीज पे मैंने वजन डाला है, दूसरे पैर से वो खुद वजन डाल रहा है बच्चा ताकि वो खड़ा होए। नेक्स्ट वीडियो में मैंने बच्चे को एक अनस्टेबल सरफेस पे रखा है। इसमें आपको दो लोगों की मदद लगी है। तो हम दो तरीके से बैलेंस ट्रेनिंग कर सकते हैं। या तो हम
प्रॉपरली नॉर्मल मैट पे रखकर जमीन फ्लोर लेवल पे बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं, या तो हम बच्चे को एक डायनामिक सरफेस पे, जो अनस्टेबल सरफेस है, उस पर रख के बैलेंस के लिए ट्रेन कर सकते हैं। तो इसमें मैंने बच्चे को इस पे खड़ा रखा है और उसको टॉयज दिया है ऊपर, ताकि वो उसकी तरफ आए, खुद को सीधा करने की कोशिश करे, जो मोस्ट ऑफ द बच्चों में कमी होती है या नहीं कर पाते हैं वो। तो एटलीस्ट वो टॉयज देख के वो ऊपर आने की कोशिश कर सके। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, क्रॉल कर सकता है बट खुद को पुल नहीं कर सकता है, तो आप पिलोज का कासल बना सकते हो उसके आसपास, उसको ऊपर उसके बाहर आने के लिए मोटिवेट कर सकते हो। या तो जैसे मैंने इसमें दिया है, टॉय दिया है उसको, मैंने मतलब मोटिवेट किया है, हम मैं दूसरी तरफ खड़ी रहकर बच्चे को बाहर आने के लिए मोटिवेट कर रही हूँ, ताकि वो टॉय ले और बाहर खुद से आने की कोशिश करे। इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग के लिए आप उसका फेवरेट गाना लगा सकते हैं, ओनली ऑडियो नो वीडियो, ओनली ऑडियो लगा सकते हैं। और उसको अगर एक्शन पसंद है तो कोई अगर दूसरा बच्चा है घर में तो वो एक्शन कर सकता है, या कोई और घर में जो है वो एक्शन करके उसको ध्यान आकर्षित कर सकता है, जिससे कि वो खड़े हो पाए। इसमें मैंने बच्चे के पैरों में एंकल वेट्स बांधे हैं, ताकि उसका प्रेशर फीट पर रहे। और ये कुछ टॉयज है जो हम स्टिकी ट्यूब्स बोलते हैं इसको, जो हम दीवार पर चिपका के बच्चे को पुल करने के लिए बोल सकते हैं। इसमें उसके पेट का ताकत लगता है, उसके हाथ का ताकत लगता है पुल करने के लिए, और खुद से खड़े होने में भी उसका बैलेंस भी इसमें ट्रेन हो रहा है। वॉकिंग के लिए पहले स्टैंडिंग आना जरूरी है, पुल टू स्टैंड आना, सपोर्टेड स्टैंडिंग आना, फिर वॉकिंग, फिर इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग आना, और फिर वो वॉकिंग की तरफ बढ़ सकता है। इस बच्चे का स्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है, इसलिए हमने उसे एक स्टैंडिंग बार पर स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा किया है। ऐसे अगर किसी पीडियाट्रिक थेरेपी सेंटर में अगर आप अवेलेबल है, तो आप उनको तो जो थेरेपिस्ट है वो उसको इस पर स्ट्रैप करके रखते हैं, ताकि उसके पैरों पे प्रॉपर वजन आए। ये सपोर्टेड वॉकिंग है, बच्चे के आर्म्स को पकड़कर उसको में हमने कमर पर पट्टा दिया है और पैरों में प्रॉपर शूज दिए हैं, ताकि उसका प्रॉपरली फीट जमीन पर पड़े। तो इसके थ्रू, प्रॉपर सपोर्ट के थ्रू हम उसको सेफ फील करा सकते हैं। पहले वो सेफ वॉकिंग आना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए बच्चा आपका आगे पैर डालने का। अगर आपका बच्चा खुद से पैर नहीं डाल रहा है, तो आपको उठाकर उसको सिखाना है कि पैर कैसे आगे डाल सकते हैं। यूजुअली हम बच्चों को वॉकर्स में डालने से मना करते हैं, क्योंकि उनका टो वॉकिंग डेवलप होता है, उनका वॉकिंग पैटर्न खराब हो जाता है। तो उसकी जगह हम ऐसे पुश वॉकर्स प्रमोट करते हैं, उन जिसमें बेबी को पुश करके वॉकिंग करना होता है। तो दिस इज बेटर देन द वॉकर्स जिसमें बच्चे बैठ के वॉकिंग करे। ये कुछ असिस्टिव डिवाइसेस है, स्टैंडिंग फ्रेम जिस जो हमने देखा, पोस्टीरियर वॉकर, अगर आपका बच्चा आगे कदम डाल पा रहा है बट आगे कदम डालते वक्त वो पीछे की तरफ गिर रहा है, तो ये पोस्टीरियर वॉकर की मदद से हम उसको पीछे सपोर्ट दे रहे हैं, ताकि वो आगे कदम बढ़ा सके। एंकल फुट ऑर्थोसिस उन बच्चों में यूज होता है जिनका फुट का पोजीशन प्रॉपर नहीं होता है, तो हम एंकल फुट ऑर्थोसिस के थ्रू उनको एक प्रॉपर पोजीशन देके उनके पैरों पे वजन डाल सकते हैं। ये कुछ होम प्रोग्राम है पेरेंट्स के लिए। अ, अपने बच्चे को टमी टाइम देना बहुत जरूरी है, इसलिए फ्लोर प्ले बहुत जरूरी है। स्क्रीन टाइम अगर बहुत है बच्चे का तो प्लीज रिड्यूस इट, क्योंकि उसका अटेंशन नहीं डेवलप हो पा रहा है उससे। तो स्क्रीन टाइम रिड्यूस कीजिए। प्रैक्टिस स्टैंडिंग गेम, जैसे हमने देखा, एनकरेज बेयरफुट वॉकिंग। अगर जब हम बच्चे को बेयरफुट वॉकिंग देते हैं, तो उसका जो टेक्सचर प्रॉब्लम होता है वो भी सॉल्व होता है। एट फर्स्ट आपका बच्चा शायद दूसरे टेक्सचर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट जैसे जैसे आप उसको फेमिलियर करोगे, एक्सप्लोर करने दोगे उन टेक्सचर्स पे, तो उसको वो टेक्सचर अच्छा लगने लगेगा और वॉकिंग डेवलप होगा।
पुश टॉयज, जैसे कि वो पुश वॉकर में हमने वीडियो में देखा, आप वो प्रमोट कर सकते हो। सिट टू स्टैंड एक्टिविटीज, क्लाइंबिंग एक्टिविटीज, अगर आपका बच्चा बड़ा है और स्टेयर क्लाइंबिंग कर सकता है तो आप इनिशियली आप उसको बताओगे कि कैसे स्टेयर क्लाइंबिंग होता है, और फिर आप उसको खुद से करने का स्पेस दीजिए। बच्चे का खुद से करना भी बहुत जरूरी है। आप भले ही सपोर्ट के लिए बाजू में रखिए, बट बच्चे का खुद से ट्राई करना भी जरूरी है। आप सॉन्ग्स यूज कर सकते हो, फेवरेट टॉयज यूज कर सकते हो, गेम्स यूज कर सकते हो। थेरेपी को फन रखो, उसके लिए कंपल्शन नहीं रहना चाहिए कि नहीं मम्मा, इसलिए ऐसे टॉर्चर नहीं लगना चाहिए उसको, एक फन वे में ये सारी चीजें करानी है। सो कंक्लूजन के लिए हर बच्चा अलग अलग डेवलप होता है। हम दो बच्चे को कंपेयर नहीं कर सकते कि ये बच्चा ये सब कर रहा है बट मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा है। उसको थोड़ा टाइम दीजिए, प्रॉपर सपोर्ट के साथ, प्रॉपर फैमिली सपोर्ट के साथ, फिजियोथेरेपी के साथ, और अर्ली शुरुआत करने से आपका बच्चा वो सारी चीजें अचीव कर लेगा। थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. Flora, for sharing such a valuable knowledge and practical insights in such a simple and engaging manner. We truly appreciate your time and effort in making this session meaningful for all of us. I would also like to thank all the parents, caregivers, therapists, and participants for your enthusiastic participation, thoughtful questions, and active involvement throughout the session. We hope today's session provided useful insights that you can apply in your daily, routine interactions with your child. Thank you once again. If any parents have any questions, we are open for questions. You can even Yeah, put it on the chat box below so we can the answer. meeting will end in a minute actually, so we have to kind of rejoin if they want to. Or you can, I'm giving Yeah. you the clinic number. I'm putting it in the chat box below. Mm. If there are any questions, you can message us on this number.